Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So I welcome you all to my YouTube channel, Talim for Everyone. So today we are going to cover section 5.4, Simple Inequalities, and exercise 5D, question number 1 from chapter number 5, Linear Equations and Simple Inequalities. This chapter is from New Syllabus Mathematics Book 1, or you can say D1. And if you are using this book, book 1, so you may find this topic on page number 125. So let's start. What is simple inequalities? So inequalities, what is inequalities? So in mathematics, the relationship between two values are not equal is defined by inequalities. So मैथ में अगर कोई भी values का हम relation करते हैं, उनको compare करते हैं, if those two values are not equal, then we can say that it is called as inequality. Inequalities means not equal. Generally, if two values are not equal, we use symbol not equal symbol. Okay. But to compare the values, whether it is less than or greater than, different inequalities are used. अगर बात की जाए कंपेयर करने की किसी भी दो वैल्यूज को, तब हम कोई और सिंबल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है. इसके अलावा ये है कि इन दिस सेक्शन और इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द इनइक्वालिटीज used in algebra, different inequality symbols, properties, and the procedure for solving the linear inequalities in one variable. पहली बात ये कि चैप्टर नंबर 5 में जो भी किसी भी किस्म की जो इक्वेशंस हैं या कुछ भी है, वो वन वेरिएबल पे जो है बेस कर रही है. वन वेरिएबल मींस के एक वेरिएबल होगा. कुछ भी कोई भी इक्वेशन में लिख दूं, फॉर एग्जांपल 3x plus 4 is equal to 0. This is an equation. So एक वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल्स मींस के x plus y is equal to 1. इस तरीके से टू वेरिएबल. तो इस चैप्टर में हम लोग ओनली वी आर डीलिंग विद ओनली वन वेरिएबल. सो इनइक्वालिटीज को अब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में इन अलजेब्रा. क्योंकि चैप्टर नंबर 5 ऑफ बुक 1 इज रिलेटेड टू अलजेब्रा सेक्शन. सो जो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी होंगी, सिंबल्स होंगे या मेथड होंगे, वो हम लीनियर इनइक्वालिटीज पे जो है अप्लाई करेंगे. ओके. सो आई होप सो इतना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. हम करने क्या जा रहे हैं, हम बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करने जा रहे हैं. फाइन. सो नेक्स्ट. ओके फाइन. व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली अ नंबर लाइन. ये आप लोगों ने जो है प्राइमरी सेक्शन में भी पढ़ा होगा, और यू कैन से दैट के क्लास 5 क्लास 6 से जो है पढ़ते हुए आ रहे होंगे. बेसिकली बुक 1 जो है वो क्लास 7 के लिए डिजाइन की गई, क्लास 7 एंड 6 दोनों के लिए. ठीक है. तो कुछ लोगों ने जो है क्लास 6 में पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों ने क्लास 7 में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा. थोड़ा बहुत जो है इससे रिलेटेड आइडिया होगा आप लोगों को व्हाट इज बेसिकली नंबर लाइन. और प्राइमरी में भी ये पढ़ लिया होगा in arithmetic section. Fine. So what is basically number line? So this is the number line. Since the number 10 is the right, is to the right of the number 5, so we can say that 10 is more than 5. क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं 5 और 10 को, तो मैं ये कह सकती हूँ. उसके अलावा ये भी है कि 10 जो है राइट साइड पे 5 के, तो मैं ये कह सकती हूँ 10 is greater than or more than 5. or how can we write like this? 10 is greater than 5. Similarly, -5 and -10 को अगर मैं कंपेयर करूँ, -5 is to the right of the -10. So now we can say that -5 is greater than -10. and how can we write like this? Or we can say that -10 is less than -5. How can we write it? -10 is less than -5. Or 10 is greater than 5 and -10 is less than -5 are known as inequalities. ये सब symbols जो है इस तरीके से जैसे भी हम लिख रहे हैं, जो भी प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, इनको हम inequalities कहेंगे. ओके. सो
How can we conclude this number line? Just by saying that a number on the number line is more than any number on its left and less than any number on its right. Okay. So अगर मैं एक number ले लूँ, for example, I have taken 5 on this number line. Okay, if I compare this number to any number, for example, I'm going to compare 5 to 2. Fine. तो 2 जो है 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अब हम ये कह सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2. सो हाउ कैन वी राइट दिस लाइक दिस? अगर मैं इसी नंबर को ऐसे नंबर से कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल जो इसके राइट हैंड साइड पे हो, तब 5 जो है उस 9 से जो भी नंबर मैं कंपेयर करवा रही हूँ 5 से, फॉर एग्जांपल वो अगर राइट पे, तो उस नंबर से जो है 5 छोटा होगा. फॉर एग्जांपल मैं यूं लिख सकती हूँ 5 इज लेस देन 9. ऑलराइट. सो आई होप सो यहाँ तक ये नंबर लाइन भी समझ में आई होगी आप लोगों को. हम लोग नंबर लाइन को जो है बेसिकली अलजेब्रा में भी करके देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं. In algebra, inequality is a mathematical statement that shows the relationship between two expressions using the inequality symbol. Basically, arithmetic में क्या होता है, हम values को compare कर रहे होते हैं, और algebra में हम लोग expressions को जो है कंपेयर करते हैं. फाइन. और फिर उसके हिसाब से जो है इनइक्वालिटी सिंबल यूज करते हैं. द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी साइन आर नॉट इक्वल. एक्सप्रेशन जो भी बोथ साइड पे होंगी, इनइक्वालिटी सिंबल के दोनों तरफ जो भी एक्सप्रेशंस होंगी, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो. फाइन. और उनके साइन भी इक्वल हो. इट मींस दैट द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड, और वाइस वर्सा. कभी ये होगा राइट हैंड साइड वाली आपकी जो है एक्सप्रेशन ग्रेटर होगी, कभी लेफ्ट हैंड साइड वाली, कभी राइट हैंड साइड वाली लेस होगी, और कभी जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली, और इस तरीके से चलती रहेगी सिचुएशन. If the relationship between two algebraic expression is defined using the inequality symbol, then it is called as linear inequality. अगर टू algebraic expression की जो है हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका यूजिंग द इनइक्वालिटी सिंबल को यूज करते हुए अगर हम उन किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिलेशनशिप जो है डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इट मींस दैट वी आर explaining linear inequalities. Okay, so here this is the table. The different notation and their meanings are summarized in the table given below. Okay, there are few notation and in their meanings. For example, A is the symbol is known as more than B. So A is more than B, and this one is A is less than B. A is more than or equal to B, and A is less than or equal to B. Okay, ये जो भी कुछ हमने अभी तक मैंने बताया है आप लोगों को, ये बेसिकली बहुत ही सिंपल है. फाइन. आगे चलते हैं. अब एक चीज है, हम लोग किसी भी दो नंबर को, किसी भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. एक वन इज ग्रेटर और वन इज लेस, और वन इज ग्रेटर इक्वल टू अनदर नंबर, और वन इज लेस देन और इक्वल टू अनदर नंबर. ओके. अब ये देखना है कि अगर हम इनइक्वालिटीज की दोनों तरफ जो भी हमारे नंबर हैं, उनको हम किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, या उन्हीं नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाएं, तो क्या रिजल्ट आएगा. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. पहले है कि मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव नंबर सी. एक नंबर ले लिया पॉजिटिव नंबर सी टू बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी. जो भी हमारे पास केसेस हैं, इनके इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जो है हमने किसी एक पॉजिटिव नंबर से जो है मल्टीप्लाई करवाना है. फाइन. तो अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 3 है यहाँ पे, अभी सिर्फ यहाँ पे देखना, और y की 2 है, तो ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, बिल्कुल फाइन. नाउ इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव नंबर, फॉर एग्जांपल 2 to the both side of the inequalities, तो 3 2s are 6 हो जाएगा एंड 2 2s are 4. तो अब ये देखना है 6 एंड 4 का कंपैरिजन क्या होगा. 6 इज ग्रेटर देन 4. ठीक, इसका मतलब सही है ये. फाइन. तो इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 3 इज ग्रेटर देन 2 है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, कोई पॉजिटिव नंबर है, 3 1 3 3 2 1 7, अभी भी सेम है. ठीक.
और अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ और यहाँ पे 3 ले लूँ, 2 इज लेस देन 3, अगर मल्टीप्लाई करा दूँ 2 से दोनों तरफ तो 2 टू ज़ 4, 3 टू ज़ 6, 4 इज लेस देन 6। मीन्स कोई भी केस हो, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ जो नंबर है उनको, तो रिजल्ट मेरा सेम रहेगा। सिंबल जो है हमारा इनइक्वालिटी का वो स्विच नहीं करेगा, स्वैप नहीं करेगा। फाइन। सिमिलरली डिवाइडिंग अ पॉजिटिव नंबर, सी फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, तब भी डिफरेंस कोई नहीं है। फाइन। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक। अगर मैं इन दोनों को जो है डिवाइड करवाऊं फॉर एग्जांपल 2 से, ठीक, 3 डिवाइडेड बाय 2, देखना ये है कि ये वाकई में होगा या नहीं। एंड 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये तो आ गया 1। एंड 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.5। फाइन। तो 1.5 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे भी ये बात कंफर्म हो गई, हमने कंक्लूड कर दी कि कोई भी केस हो हमारे पास इनइक्वालिटी के, अगर उनकी दोनों तरफ की जो वैल्यूज हैं इनइक्वालिटी के, उनको हमने अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाया तो हमारे पास सिंबल स्विच नहीं करेंगे। फाइन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताती चलो, मैं यहाँ पे एक चीज बता ही देती हूँ। अगर पॉजिटिव नंबर ना हो, वो नेगेटिव नंबर, तब क्या होगा तो देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर ना हो, नेगेटिव नंबर हो, क्योंकि ये भी अब रहेगा, बुक वन में तो है नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि x इज ग्रेटर देन y। फॉर एग्जाम्पल 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाती हूँ -1 से, फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2। अब इनके बीच कंपैरिजन करते हैं, क्या -3 इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन। तो मैं अगर वापस पीछे लेके चलूं और -2 एंड -3 जो है -2 की लेफ्ट पे, सो इट मींस दैट -2 इज ग्रेटर देन -3। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ अब -3 इज लेस देन -2। साइन जो है स्विच हो गया नेगेटिव नंबर से, तो इट मींस दैट आगे भी यही रहेगा, ठीक। अब अगर डिवाइड करवाऊं किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यही है 2, अब मैं डिवाइड करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय -3 एंड 2 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 जा 3 1 जा 3, -1 हो गया, ठीक। 2 डिवाइडेड बाय -3, मैं अब -3 से डिवाइड करवा रही हूँ दोनों नंबर, इन दोनों नंबर। फाइन। तो 2 डिवाइडेड बाय 3, पॉइंट लगाया 0, फिर 2 9 2 4 12 18, 6 18, तो 0.6 हो गया, -0.6। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर, -0.6 इज ग्रेटर देन -1। ओके। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन 4 केसेस को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराती हूँ किसी भी माइनस वैल्यू से, ठीक है, तो हमारे साइन स्विच हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। फाइन। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी या डिवाइड करवाऊंगी तो सिंबल्स जो है वो सेम रहेंगे। फाइन। तो आगे चलते हैं। Now exercise 5D, question number 1 is that fill in each box with greater, less, or greater than equal to, or less than equal to symbol. Fine. So if x is greater than y, then 5x is dash than 5 by 5x is greater than 5 by, क्योंकि positive number multiply हो रहा है. If x is less than y, then x upon 20 is dash than y upon 20 less than. If x is greater than less than y, then 3x is greater than equal to 3y
If x is less than equal to y, then x upon 10 is less than equal to y upon 10. Fine, symbol same रहे. अब है if 15 is greater than 5 and 5 is greater than x, then 15 is less than x. If you see, compare it किसको कर रहे हैं हम? 5 को कर रहे हैं. 15 is greater than 5 and 5 is less than x. अब जरा थोड़ी देर के लिए 5 को हटा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 is greater than x. 15 is greater. If x is less than 50 and 50 is less than y, if x is less than 50 and this 50 is less than y, then x is less than y. 50 को थोड़ी देर के लिए हटाइए आप, तो देखिए x और y का रिलेशन क्या बन रहा है? x is less than y. फाइन. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel and like this video, and also don't forget to press bell icon ताकि जो है मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे. So thank you once again. Allah Hafiz.